علیمہ خان صاحب آئے، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. اچھا، اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں، پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس، بریجز کو بلاک کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے. بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بلیم گیم کھیلی گئی. جھوٹ بولا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی ہے. میڈیکل رپورٹ کے مطابق سب کچھ کلیئر ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ علیمہ خان نے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کا علاج لیٹ ہوا. ہم اپوزیشن سے رابطے میں تھے، ہم نے یقین دلایا کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے. ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی موجودگی میں معائنہ ہو. جھوٹے بیانیے اور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد اب آنکھ کاٹ کھیلا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کو گھڑی اور اس کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا مزمل اسلم کے بیان پر رد عمل. اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز سے کارکردگی پر مقابلہ کرنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ کوئی بھی آپ کا جو کریانہ سٹور ہے جہاں پہ یہ کارڈ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی اگر آپ سے پیسے مانگے کہ یہ آپ کا 10,000 روپیہ کیش ہے تو اس میں سے آپ مجھے 1,000 دے دیں یا 2,000 دے دیں یا 3,000 دے دیں، آپ نے ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں دینا اور رپورٹ کرنا ہے. جہاں پر آپ سے پیسہ مانگا جائے وہ 10 کا 10,000 روپیہ آپ کا ہے، اس میں سے ایک پیسہ بھی کسی اور کا نہیں ہے. اور اگر آپ سے وہ پیسہ مانگا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ وہ پیسہ مت دیں بلکہ وہ پورے نام کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ وہ سائٹ آپ رپورٹ کریں. پنجاب پولیس کو یہ کہہ دیا گیا ہے وہ انسٹنٹلی ایکشن میں آئے گی اور سخت کارروائی ہوگی ان کے خلاف. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں 40 لاکھ رمضان کارڈ دینے کا اعلان. رمضان نگہبان کارڈ لاکھوں خاندانوں کو ان کی دہلیز پر پہنچائے جا رہے ہیں. کارڈ سے 10,000 روپے کا راشن خریدا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت رمضان نگہبان پیکج کا اجلاس. کوئی 1,000 2,000 دے کر 10,000 کا جھانسا دے تو فوراً پولیس کو اطلاع دے. جو دکاندار مہنگی اشیاء فروخت کرے گا اس کی دکان سیل ہوگی. وزیر اعلیٰ کا حکم. رمضان سے قبل مہنگائی کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. موقف اختیار کیا گیا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے. عدالت قیمتیں مقرر کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرے. درخواست گزار کی استدعا. رمضان سے قبل منافع خوری کا بازار گرم. سرکاری نرخوں میں لہسن 530، ادرک 300، کریلا 160، شملہ مرچ 150 روپے کلو، انار 810، انگور 600 روپے کلو، کینو 335 اور کیلا درجہ اول 230 درجن میں دستیاب. شہریوں کا مہنگی اشیاء ملنے کا شکوہ. چکن سستا ہو کر بھی کچن سے دور. مرغی کا گوشت 461 روپے کلو پر برقرار. زندہ برائلر ہول سیل 304، پرچون ریٹ 318 روپے فی کلو مقرر. فارمی انڈے 4 روپے سستے، نئی قیمت 236 روپے درجن برقرار. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,080 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس. رمضان بازار، آن دی گو بازار، کارڈز تقسیم، دسترخوان اور سیل پوائنٹس کا جائزہ لیا. 10 رمضان تک ہر حقدار کی دہلیز پر ایکٹیویٹڈ کارڈ فراہم کیا جائے گا. 10,000 روپے حقدار کے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. مریم خان کا حکم. رمضان المبارک کی آمد. کہنا کی اچھا سبزی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھ گیا. شہریوں کی بڑی تعداد سبزیاں اور پھل خریدنے میں مصروف. سبزی منڈی میں سبزیوں کے ریٹ کم، عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ضلعی انتظامیہ بھی سبزی منڈیوں میں بہتر انتظامات فراہم کرنے کے لیے متحرک. ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس.
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में फ़ी रूट 50 रुपये इजाफा कर दिया। अब लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1800 की बजाय 1850 रुपये वसूल होने लगा। फरवरी में किरायों में मजमूई तौर पर 100 रुपये फ़ी रूट इजाफा किया गया। मुतालिबात तस्लीम करो, मुलाजिमिन को रिलीफ दो। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजिमिन के एहतजाज का 8वां रोज़। मुलाजिमिन का कहना है कि हुकूमत हमारे मसाइल हल करे और वफाकी तर्ज पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। लीव इन कैशमेंट, रूल 17A समेत तमाम जायज़ मुतालिबात माने जाएं। मोहतरमा से हमारी 6 फरवरी को भी इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन कबल जो इलेक्शन कैंपेन का लास्ट दिन था, हमारी जाती उम्रा में वफद की मुलाकात हुई और उन्होंने फिर से हमें वादा किया कि अगर वो मुंतखब होती हैं तो जो मुलाजमीन के मसाइल हैं उनकी दहलीज पे जो है वो हल करेंगी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वादों की तकमील का नाम है और ये तमाम प्रेस रिलीज़ PMLN की तरफ से ही जारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस खलीलुर रहमान खान इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मगरिब की नमाज के बाद डूंगी ग्राउंड गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। मरहूम का जनाजा इनकी रिहाइशगाह से 5:30 बजे शाम को उठाया जाएगा। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस और गैर मनकुला जायदाद की मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अराजी इंतकाल के लिए ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। नए कानून के तहत ज़मीन के तमाम तर इंतकाल डिजिटल किए जाएंगे। खुशी की बात यह है कि आज मेरे बेटे ने फ्लैग मार्च जो है होस्ट किया और जो साथ बेटी थी उसके वालिद जो हैं किसी ढाबे पे चाय बेचते हैं। सो ये वो इंक्लूसिव पंजाब है जिसमें हमने गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाना है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का फ़र्क मिटाना है। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला का विजन है कि सरकारी स्कूलों में तालीम बेहतरीन होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि आज ऐसे स्कूल में हूँ जिसने 1 साल में बहुत ग्रूम किया। मेरे बच्चे के साथ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मुझे फ़ख्र है। जनूबी छावनी में 2 बहनों के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब विमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का नोटिस। हिना परवेज़ भट्ट ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट DIG ऑपरेशन से तलब कर ली। मरकज़ी मुलजिम समेत होटल मालिक और मैनेजर गिरफ्तार, तहकीकात जारी। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, बाप ने 18 साला बेटी को मुबैना तशद्दुद के बाद ज़्यादती का निशाना बना डाला। वालिदा की इतला पर बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक वालिदा सबा बीबी की 20 साल कबल अली हसन से शादी हुई। 4 साल बाद तलाक हो गई। 2 बेटियों में से एक की शादी हो गई जबकि दूसरी वालिद के पास थी। मुलजिम ने बेटी को जंजीरों में बांधकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल इमारतों के खिलाफ LDA मुतहरिक। 9 गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। 113 इमलाक को सील कर दिया। LDA टीम्स ने जोहा टाउन, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, चाहमीरा रोड, न्यू मुस्लिम टाउन और सब्ज़ाजार में कार्रवाइयाँ की। सील की गई इमलाक में निजी बैंक, हॉस्टल, बेकरी और स्कूल शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में PTI के 3 कारकुनान की नज़रबंदी अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने सरकारी वकील की जानिब से 30 रोज़ा नज़रबंदी अहकामात पुलिस वापस लेने के बयान पर दरख्वास्तें निपटा दी हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। बसंतपुरा में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों के मुताबिक UC 47 में पुराना ट्यूबवेल 2 महीनों से ख़राब पड़ा है जबकि नया ट्यूबवेल ताहाल तामीर नहीं किया जा सका। मकामी रिहायशियों का बताना है कि पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से महंगे दामों टैंकर और बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं। वर्षा का जो पानी है ना, हमको साफ भी मिलता और पानी भी नहीं रहा। 4 महीने हो गए हैं तकरीबन। पानी हर रोज़ मतलब मोटर चलती है, खाली चलती है, तो पानी भरा नहीं देता। तो हम बहुत मुश्किल में हैं, तो इसका कोई इंतज़ाम करिए जाए हमारे लिए। 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ।
ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਮੁੱਲ 1000 1200 1500 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, 8 ਦਿਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਿਆ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ 6 ਦਿਨ ਬੰਦ, 8 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ, ਇਹ सिलसिला 7-8 महीने। डीसी लाहौर का तहसील रायवंड का दौरा, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, डीसी की हिदायत। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़रिए सदारत क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का इजलास, संगीन जुराइम के खात्मे के लिए सीसीटी की कारकर्दगी को सराहा। सीसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, इंतज़ामी अमूर भी ज़र गौर आए। आईजी पंजाब ने कहा कि सीसीटी को अहदाफ के हसूल के लिए मज़ीद वसाइल फराहम करेंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़रिए सदारत इजलास, सूबाई वज़ीर ने कहा कि ज़रई मुदाखिल की ओवर प्राइसिंग के ख़िलाफ़ महकमा ज़राअत पंजाब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुकर्ररा निर्खों से ज़ायद कीमत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकर्ररा निर्ख अवामी मकामात पर आवेज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान निगहबान कार्ड का तोहफ़ा, शालीमार में अवाम को रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मोहम्मद आमिर भट्ट का कहना है कि अवाम को घर की दहलीज पर कार्ड फराहम किया जा रहा है। एसी ऑफिस में कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने पीएससी और सर्वे की बुनियाद पे जो मुस्तहकीन हैं उनको रमज़ान जो निगहबान कार्ड इशू किए हैं, उस कार्ड से मुराद ये है कि वो हमें कार्ड रिसीव हुए हैं। मुझे अभी तक टोटल 6000 कुछ कार्ड रिसीव हो चुके हैं। पहली जो एपिसोड्स उसमें 3440 थे और 3000 कुछ आज हमारे पास आ गए हैं, जो हमारी टीम गई है रिसीव करने। उन कार्ड्स को हमारे जो टीम्स हैं नीचे नोमिनेटर्स हैं, 200 मुझे नोमिनेटर्स अर्बन यूनिट से प्रोवाइड किए गए हैं, जो हर घर के बाहर जाएंगे और एक इज़्ज़तदार तरीके से उन्हें उनका कार्ड डिलीवर करेंगे। उस जिस फैमिली के पास वो कार्ड आ जाएगा, उस फैमिली ने ये करना, वो किसी भी इजी पैसा, किसी भी ये बीओपी के जो एजेंट्स उनके पास जाके अपनी अटेस्टेशन करेंगे, बायोमेट्रिक लगाएंगे। बायोमेट्रिक लगाने के बाद वो जा सकते हैं किसी भी एटीएम कार्ड से, एटीएम मशीन से जाके अपना जो रमज़ान की जो भी गवर्नमेंट ने छोटा सा एक एजाज़िया रखा है। सूरज बादलों की ओट में छुप गया। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 26 डिग्री तक जाने का इम्कान। उधर बागों का शहर फिर फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में AQI 200 के करीब जा पहुंचा। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। माह रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। लाहौर की जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में होगा। और दुनिया भर में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:56 पर होगा और शाम 5:12 पर ग्रहण अरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम शाम 7:28 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का नज़ारा नहीं किया जा सकेगा।